ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جو ہے خطاب کیا ہے. خطاب میں انہوں نے آپریشن سندور کے حوالے سے بات کی ہے. اس کے علاوہ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے اور پاکستان کے وزیر دفاع نے بھی کچھ باتیں کی ہیں. اس حوالے سے ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. شہزاد صاحب, جو آرمی چیف نے آپریشن سندور کی ناکامی کے حوالے سے بات کی ہے, کیا کہا ہے انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے دیکھیں آپ آپریشن سندور کے حوالے سے وہ تو ظاہر ہے ساری دنیا کو عیاں ہو گیا ہے, مگر اس کے اوپر جو مہر ضبط ہے وہ فیلڈ مارشل نے لگا دی. انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ دیکھیں کہ جو جنگیں ہوتی ہیں وہ کوئی سیاسی بیان بازی سے, ہاں جی بالکل, اس میں یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ جی جو انہوں نے اس میں بیان دیا ہے کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ سیاسی بیان بازیوں پہ, کوئی رسمی روایات پہ یا فینسی ساز و سامان کے اوپر نہیں کی جاتی. دیکھیں جنگ کے لیے ایک حکمت عملی اپنائی جاتی ہے, اور بھارت نے جتنی بھی جنگ کا آغاز کیا ہے وہ میڈیا کے جھوٹے پلندے کے اوپر کیا ہے. نہ صرف انہوں نے بھارت کے میڈیا میں یہ جھوٹ بولا بلکہ دنیا کے میڈیا کو بھی یہ اشکار کیا کہ وہ نہ جانے پاکستان کا. آپ یہ دیکھیں نا کہ جس وقت جنگ شروع ہوئی ہے اس نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا ہے, تو اس وقت اس نے یہ بیان بازی شروع کر دی اور میڈیا اس کا جو ہے نا کارٹون نیٹ ورک وہ ایک دم باہر آ گیا کہ ہم نے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا, ہم نے کراچی پہ کر لیا, ہم نے فلان جگہ پہ کر لیا. لاہور کی بندرگاہ تباہ ہو گئی. لاہور کی بندرگاہ دیکھیں نا, اب انہوں نے وہ بندرگاہ کراچی سے اٹھا کے تو لاہور لے آئے. راوی میں کئی بندرگاہ بنی تھی. جی بالکل, یہ وہ چیزیں تھیں جو آرمی چیف کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کا وہ جھوٹا اور مکار چہرہ جو ہے, جو نہ صرف امریکہ جیسے ملک میں کینیڈا نے بھی اس چیز کو تسلیم کی ہے کہ بھارت ایک جو ہے دہشت گرد ریاست ہے, اور اس کا یہ جھوٹیا دہشت گرد کرتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں کرتے ہیں. باہر کے ملک میں دیکھ لیں, کینیڈا میں آپ دیکھ لیں, وہاں پر اس کے راہ نے جا کے جو ہے ایک سکھ لیڈر کو جو ہے وہ سکھ رہنما کا جو خالستان کی تحریک چلا رہے تھے. تو بھارت کا چہرہ ایکچولی پوری دنیا میں یہ عیاں ہو چکا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, بڑا کرم ہے کہ ہماری جو ریاست ہے, ہماری پاک افواج ہے, جو واقعی وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر دم ہر وقت ہر لمحے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور واقعی یہ ثابت ہوا جس وقت یہ 10 مئی کا واقعہ ہوا ہے, جو بھارت کے اوپر پاکستان نے اپنی جو فوقیت تھی وہ ثابت کی. اس کا یہی واضح ثبوت تھا کہ جو ٹائم جو بھارت نے اٹیک کیا تھا پاکستان کے اوپر, اس کو سمیٹنے کے لیے یا اس کے ایکشن کے لیے پاکستان کو کم از کم 1 ہفتہ ریکوائرڈ تھا, مگر ہماری پاک فوج نے آپ یہ دیکھیں کہ 48 گھنٹے کے اندر وہ سارا کچھ جو ہے وہ حاصل کر دیا اور بھارت کی جو ہے ناکو چنے چبوائے. اب بھارت کے پاس سوائے چیخو پکار کے, جھوٹے میڈیا بیانیے کے, آپ کو پتا ہے اب ایک AI بھی آئی ہے. اس AI کے ذریعے انہوں نے وہ ایسا پراپوگنڈا کیا ہے کہ خود آج اس کا میڈیا اس کا گریبان پکڑا ہے اس کے جھوٹ کا, کہ ہاں اس کے اوپر بھی بات کی ہے انہوں نے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں کیا کہا انہوں نے اس کے اوپر دیکھیں نا, اس کے اوپر جو ہندوازم کا پرچار ہے جس میں RSS ہے ان کی, جیسے یہ پاکستان کے اوپر تو بڑی جلدی دیکھیں اب جو انہوں نے اٹیک کیے تھے اس میں کہا کہ جی یہ دینی مدارس ہیں جس کے اوپر بھارت نے اٹیک کیا, اور یہاں کے جو معاملات ہیں یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی تھی, اور جس وقت اٹیک کیا وہاں پہ ایسی کوئی چیز نکلی بھی نہیں. تو آپ اپنی RSS کو بھول گئے ہیں, آپ جو اپنے ہندوانہ قسم کے جو مائنڈ ہے اس کو آپ چھوڑ گئے ہیں. شر پسند تو آپ ہیں, شدت پسند تو آپ ہیں, آپ دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور یہی ثابت ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ایک وہ یلو سی جو ہوتی ہے وہ اورنج کلر کی پہنی ہوئی, وہ RSS کی نشانی ہے. آپ نے RSS کا 100 سالہ تقریب کو پورا کرنے کے لیے, آپ نے اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے, آپ نے کشمیر کے اوپر ظلم ڈھانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نریندر مودی نہیں ہے, وہ درندر مودی ہے. وہ درندگی کی حد جو ہے وہ پار کر چکا ہوا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ جس طرح ہماری پاک افواج آگے جا رہی ہے, آنے والے قریب وقت میں آپ یہ دیکھیے گا کہ کشمیر بھی پاکستان کو جو ہے وہ واپس ملے گا, جس کے اوپر اس وقت بھارت جو ہے وہ در اندازی کر کے بیٹھا ہوا ہے. نہ جانے وہاں پہ کتنے بچوں عورتوں کو شہید کر رہا ہے. بھارت مزید کوئی مہم جوئی کرتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کس طرح سے پاکستان بالکل تیار ہے. یہ تو اپنی سوچ بھی نہ رکھے بھارت کہ شاید اس کو پہلے جیسے شاید اب پہلے جو ہوا ہے 10 مئی والے دن, وہ تو پاکستان نے ذرا نرمی کا مظاہرہ کر دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود ہمارے آرمی چیف نے اس وقت یہ کہا تھا
کہ ہم सिविलियन जगहों को बिल्कुल अटैक नहीं करेंगे, हमारा मकसद वहाँ की सिविलियन आबादी को नुकसान पहुँचाना नहीं है। मगर अब अगर ऐसा भारत करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ उसमें तजावीज़ भी आर्मी चीफ ने पेश की थी अपनी इसके हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से, इसका जो बुनियादी तनाज़ा देखिए उसका बुनियादी तनाज़ा है, उन्होंने तो यही कहा है कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उसके मुताबिक आएँ, बैठें, टेबल टॉक करें। इस वक्त भी जो जंग ख़त्म हुई थी उसमें अमेरिका सालिस बना था, अमेरिका ने भी पाकिस्तान को ये यकीन दहानी करवाई थी कि आपका और पाकिस्तान के दरमियान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त कश्मीर एक तनाज़ा बना हुआ है, मैं इसमें सालिस का किरदार अदा करता हूँ। तो लामल्ला मुझे नहीं लगता कि भारत मुज़ाकरात की टेबल पर आएगा, बैठेगा, बात करेगा या ट्रेड की बात करेगा। पाकिस्तान ने कभी भी जारियत में पहले हाथ नहीं डाला, पाकिस्तान ने कभी भी हमेशा अमन की बात नहीं किया, हमेशा खामोश रहा है, मुज़ाकरात की बात किया है, आज तक मुज़ाकरात की बात कर रहा है। अगर आपने जो सवाल किया उस हिसाब से अगर भारत ने अगर मिस एडवेंचर दोबारा करने की कोशिश की, मैं नहीं समझता हूँ कि भारत को अब कहीं जाके मिन्नत करने का भी टाइम मिलेगा, और भारत जो है वो बुरी तरह जो है वो नाकाम होगा, और इंशाल्लाह बाय हुक एंड क्रुक फिर पाकिस्तान जो है वो कश्मीर अपना वापस लेगा और भारत को जो है वो इबरत का निशान बनाएगा। ठीक हो गया। डिटू साहब, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने भी कोई असले की ख़रीदारी और जवाबी जंग के बारे में कुछ कहा है, क्या कहा है, उनको बयान दिया है? काशिफ साहब, इस वक्त जो सूरत हाल थी, जो हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को काफ़ी सारी चीज़ों का सामना है। उसमें एक प्रॉब्लम ये सरेंडर मोदी जो है ना, इसका भी है, क्योंकि मोदी ने जब से सरेंडर किया, अब भारतीय मीडिया जो पहले मोदी के गीत गाया करता था, अब वो उसे सरेंडर मोदी ही कहते हैं। अब प्रॉब्लम सारा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक तरफ आपकी जो माशी सूरत हाल है उसके ऊपर तबसरे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कि वज़ीर दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान को असले के हवाले से अपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान को मज़ीद जो असला है वो ख़रीदना पड़ेगा। उसमें जैसे एक चाइना से तैयारों के हवाले से डील चली थी, कुछ तैयारे तो मिल भी गए हैं पाकिस्तान को, उसके साथ साथ तुर्की और दीगर जो रशिया के साथ जो रशियन स्टेट्स हैं और उनके साथ जो ना रशिया की जो साबका स्टेट्स हैं, तो उनके साथ इन तमाम मामलात पर बातचीत हो रही है। देखिए, पाकिस्तान असला साजी में एक पूरी तरह से खुद मुख्तार नहीं हुआ, लेकिन अच्छी खासी जो ना असला साजी के हवाले से पाकिस्तान खुद चीज़ें बाहर भी भेजता है और वहाँ से ख़रीदता भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि हमें शहबाज शरीफ की एक गवर्नमेंट जो है उसकी जो पॉलिसीज़ में नाकामियाँ होती हैं, या जहाँ पर हमें लगता है कि उनकी माशी पॉलिसीज़ की वजह से एक आम आदमी पे प्रेशर आता है, तो हम उन पर तनकीद करते हैं। लेकिन देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हम शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पर तो तनकीद कर सकते हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान पे हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, ये हमारा सब कुछ है। सही। अब प्रॉब्लम सारा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब अगर आप बात करते हैं कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की, जैसे आपको अगर मैं उस पर आ जाऊँ जो हमारे सिपा सालार ने बात की थी, उन्होंने दो चीज़ें की थी जिसको सोचने और समझने की बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने कहा था भारत अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। अब ये मकासद सिर्फ वो नहीं थे जो उन्होंने 3 मिसाइल फायर कर दिए थे पाकिस्तान के ऊपर, ये मकासद उनके नहीं थे, इसके पीछे कई चीज़ें थी जो कि वो हासिल करना चाह रहा था, जो कि जब उसकी बदतरीन शिकस्त हुई तो उसके बाद आपने देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कितनी तेज़ी से हिंदुस्तान छोड़ना शुरू किया, कितनी तेज़ी से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने इन्वेस्टमेंट का रुख पाकिस्तान की तरफ किया। उसके साथ साथ जो इंडिया के हमदर्द और उसके खैर ख्वाह थे, उनके लिए दुनिया भर में रसवाई का प्रॉब्लम बना। पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के दोस्त हैं उनकी जो असला साज फैक्ट्रीज़ हैं उनकी कीमत बढ़ गई, उनके जो शेयर्स थे उनकी वॉल्यूम बढ़ गए। अब देखें, चाइना ने पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन किया, उसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की और चाइना की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन जो असला जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहे हैं उसको इस जंग ने वैलिडेट कर दिया। दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान के पास जो असला है इससे बेहतर असला कोई नहीं है। दूसरी बात ये आपको पता है कि इस वक्त इस हवाले से एक बयान भी सामने आया चीनी सफारतकार का कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान फौजी ताउन के हवाले से चीनी जो तर्जमान है उन्होंने भी कोई बात की है। वो क्या बात की है उन्होंने?
देखिए, चीन ने कहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ फौजी ताउन बढ़ाएगा, उसके साथ साथ जो असला साज फैक्ट्रीज हैं उसमें आगे बढ़ेंगे हम। उसके अलावा एक और पाकिस्तान को एजाज़ मिला है कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि दुनिया की ख़तरनाक तरीन एयरफोर्स है। उसकी वजह ये कि हमारे पायलट मौत से डरते नहीं हैं, वो मौत के मुंह में चले जाते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं, अल्लाह की मदद से वो कामयाबी मिलती है उनको। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के पास दुनिया की शायद ये वाहिद एयरफोर्स है जिसके पायलट कलमा पढ़ के जाते हैं कि अगर वापस नहीं आए तो अल्लाह के हवाले। अब इस तरह के पायलट आपको दुनिया की किसी और आर्मी के पास नहीं मिलते, इसलिए कि मुसलमान के अलावा बाकी जितने भी मज़ाहिब इंतहाई काबिल एहतराम हैं वो मौत से बहुत डरते हैं। उनके लिए जो कुछ भी ये दुनिया है, हमारे लिए ये दुनिया सब कुछ नहीं है, हमारे लिए इससे ज़्यादा तो आखिरत है। अब शहादत से बड़ा रुतबा किसी मुसलमान के लिए हो नहीं सकता। तो इन वजूहात की बुनियाद पर जो चीज़ें अल्लाह ने पाकिस्तान को कामयाबियाँ दी हैं ये हिंदुस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। तो जो दो चीज़ें उन्होंने की थी कि एक तो हिंदुस्तान अपने मकासद में कामयाब नहीं हुआ, वो जिस मकसद के लिए यहाँ पर अपनी कोशिशें कर रहा था उसमें नाकाम हो गया, और उसके साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज़ भारत के ऊपर एतमाद भी कर रहे थे, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे, उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली क्योंकि उनको समझ आ गई कि मोदी के आसरे पे इस खित्ते में अपनी जगह बनाना मुश्किल है। यही वजह है कि अमेरिकन पॉलिसी में 100 डिग्री की बुनियाद पर शिफ्ट आया और उन्होंने जितनी वो हमदर्दी पहले हिंदुस्तान के साथ कर रहे थे वो सारी की सारी पाकिस्तान की तरफ की। और मैं आज भी ये कहता हूँ, उस दिन भी हमने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी अवाम को सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद सोचना चाहिए। इसमें जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को यकीनी तौर पे दुनिया के साथ चलना है और उनको अपने अपने मफादात देखते हुए दुनिया के साथ अपनी अपनी डील करनी चाहिए। आप ये जहन बना लें कि कोई अगर आपका मुल्क इत्तेहादी है तो वो आपसे पूछकर पॉलिसीज़ नहीं बनाएगा, वो बाहर क्या पॉलिसीज़ बना रहा है आप उसको उधर ही रहने दें। आपके साथ उसके मरासिम क्या हैं आप इसको देखें। अब चाइना है, सऊदी अरब है, तुर्की है, अब इन ममालिक के आप ठेकेदार बनने की कोशिश ना करें कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं ना, आप ये देखेंगे आपके साथ वो क्या कर रहे हैं। सही। मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। ज़रा DGISPR साहब का उन्होंने फॉरेन मीडिया से गुफ्तगू की है, इंटरव्यू दिया है एक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने, तो उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत होने के वाले से कुछ कहा है। वो ये कोई 11वां-12वां इंटरव्यू है जो वो दे चुके हैं हमारे जो DGISPR हैं, जब से ये फॉरेन मीडिया का वाकया हुआ है फॉरेन मीडिया को, तो जाहिर है वो बड़ा हमसे तो वो ऑन एंड ऑफ बात करते ही रहते हैं, ISPR की मीटिंग्स होती रहती हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया वो बड़ा इस वक्त खुश नज़र आ रहा है पाकिस्तान के हवाले से, जो उन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दूसरी जो आपने बात की है उसमें देखें, इस वक्त जो भारत की तरफ से एक बड़ा दुनिया में फैलाया गया था कि पाकिस्तान जो एटमी मुल्क है वो गैर महफूज है, उसका एटॉमिक सिस्टम जो है वो गैर फ़ाल है, वो इस तरह है। ये उसमें उन्होंने बताया कि हमारा जो डिक्लेयर्ड एटॉमिक सिस्टम है वो इंतहाई महफूज और ज़िम्मेदारान हाथों में है। हमारा जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम उसको अपने किसी दुश्मन मुल्क पे या किसी के ऊपर दबाव के लिए हम इस्तेमाल करें। ये हमारे पाकिस्तान की सलामती और इसके दिफा के लिए ये जो है हमने रखा हुआ है, और पाकिस्तान का बिलाशुबा इसमें कोई शक भी नहीं है कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है और जो एटॉमिक सिस्टम है ये वाकई बड़ा प्रॉपर एक तरीके से रखा गया है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गैर महफूज है या कोई जज्बाती बंदे के पास है, जैसे भारत में RSS है या जो दिमाग फिरा मोदी है, उनका भी कोई पता नहीं है कि उनको वो क्या कह रहे हैं क्या ना करें। लेकिन पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार फ़ौज है, उसने उस ज़िम्मेदारान फ़ौज होने का एक सबूत दिया है। यहाँ तक कि भारत तो इस हद तक ये चाहता था कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह न्यूक्लियर का कोई इस्तेमाल करे और हम दुनिया में इसके ख़िलाफ़ जो है वो वावेला कर सकें, मगर ऐसी बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में बिल्कुल डिक्लेयर किया है, बिल्कुल क्लियर किया है कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक सिस्टम है वो महफूज हाथों में है। इसमें किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं है कि दुनिया उससे परेशान हो, या जो भारत उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कह रहा है जो सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए, तो उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी कराई है कि ऐसे कोई भी यहाँ पर चीज़ मौजूद नहीं है। इन्होंने चौधरी साहब ने कोई बात की है अपना भारत में दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड के तौर पर भी किसका नाम लिया उन्होंने? देखिए, भारत में जो दहशतगर्दी है वो RSS ही है, और उन्होंने फितनतुल ख्वारिज हैं उसमें मास्टरमाइंड तो फिर मोदी हुआ ना।
मोदी हो गया, मोदी मास्टरमाइंड तो वही है। अब BLA होगी, TTP होगी, इसका सरगना कौन है? मोदी। यहाँ पे जो पैसा सप्लाई करता है वो कौन है? मोदी जो है वो ना सिर्फ दुनिया में इस वक्त बदनाम तरीन दहशतगर्द बंदा बन चुका है, बल्कि भारत की खुद अवाम जो है, जो वहाँ की बाशऊर अवाम है, वो खुद मोदी के ऊपर लान तान कर रही है और उसको जो है उस तरीके से अब वो नहीं ले रहे। मेरा ख्याल है जैसे इसराइल का वो नेतन्याहू है, वैसे ही ये भारत का मरदूदी है। इनका DNA एक ही है, ये एक ही नस्ल के जो है वो निकले हुए हैं बाहर। ना उसको अब दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए मेरे ख्याल में कोई चांस है, ना इसका है। तो वो जो सूरत हाल है इस वक्त दुनिया का इस वक्त जो बयानिया, मैं तो ये कहता हूँ ख़ास तौर पे अमेरिका को इस भारत के इस मरदूदी को टोटली तौर के ऊपर दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाहिए। वाज़िया तौर पर न सिर्फ अमेरिका के पास बल्कि कनाडा के पास भी इस चीज़ के सबूत हैं कि भारत एक दहशतगर्द रियासत बन चुका हुआ है, जहां जिस मुल्क में खुद उसकी अपनी अवाम, वहाँ पे अक़लियत महफूज नहीं है, वहाँ पे आप ये देखें सिख महफूज नहीं है, वहाँ पर क्रिश्चियन महफूज नहीं है, वहाँ पे मुस्लिम महफूज नहीं है। आप डंडे और गोली की ज़ोर के ऊपर आप अपनी हुकूमत का जो है वो मनवाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे करबला में यजीद ने तलवार के ज़ोर पर, डंडे के ज़ोर पर जो है अपनी बैत करवाई थी। बिल्कुल उसी तरह ये मरदूदी भी इसी तरह कर रहा है कि आप मुसलमानों को कुचल के, आप सिख बरादरी को कुचल के, आप जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी को कुचल के आप अपनी हमायत हासिल कर रहे हैं। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। वहाँ की मीडिया भी अब आहिस्ता आहिस्ता, वो मीडिया जो प्राइवेट है वो आंखें खोलना शुरू हुए हैं और ये देखें कि हकाइक की इतनी इनको डर था। ईरान के हवाले से भी डीसी साहब ने कोई, ईरान के हवाले से देखें, उन्होंने कहा है कि ईरान का जो मामला हुआ है जिसके ऊपर इसराइल ने उसके साथ जारियत की है, हम पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे उसकी हमायत में खड़े हैं। हम इसराइल जारियत को किसी भी तौर के ऊपर ईरान के ऊपर नहीं आने देंगे। हम इस चीज़ को मुकम्मल डिनाई करते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने इस बयानिए को दोहराया, बल्कि हमारे तो जो PM थे उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम जो ईरान का एटमी जोहरी प्रोग्राम है हम उसकी भी हमायत करते हैं। तो ज़ाहिर है अगर PM कह रहा है तो PM के पीछे ज़ाहिर है रियासत तो खड़ी है ना, तो रियासत का भी यही बयानिया और उनका भी यही इंटरव्यू देने में उन्होंने इसी चीज़ का जो है बरमला इजहार किया है कि हम किसी भी तौर पे इसराइल की जो जारियत है वो न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि ईरान के ऊपर भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हम ईरान की भी इस चीज़ के हवाले से जो है मज़म्मत करते हैं और वाज़िया तौर पर जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमारे मंदूब हैं सिक्योरिटी कौंसिल के, उन्होंने भी इस चीज़ का जो वहाँ पे इज़हार किया था। जब ये आपको याद है पिछले दिनों वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी उन्होंने वाज़िया तौर पे कहा था पाकिस्तान कभी भी अपने दोस्त मुल्कों को नहीं छोड़ेगा ऐसे कि वो जनाब कोई भी उठे और उठ के तो ईरान के ऊपर जारियत कर दे। मेरा तो ख्याल है अभी जो सिनेरियो इस वक्त चेंज हुआ है, आप ये देखें कि सदर पुतिन जो है रूस के सदर, उन्होंने भी मुलाकात की है अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ। उनको भी कहा है कि बरमला यही कहा है कि हम ईरान के जो जोहरी पुरअमन जो प्रोग्राम है हम रूस जो है उसके साथ खड़ा है। अमेरिका को ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी हुई है कि इसराइल ने जो जारियत की थी ईरान के ऊपर, अब उसके पीछे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन और रूस भी खड़ा है। सही है। जितू साहब, DGISPR ने जो इंटरव्यू दिया है फॉरेन मीडिया को, उसमें उन्होंने फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान उनकी इस्लाहात की तारीफ़ की है। उन्होंने बताया कि फितनतुल खवारिज कौन है और फितनतुल हिंदुस्तान कौन है। वो थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें, थोड़ा बता दें क्या उन्होंने कहा है। काशिफ साहब, उसके हवाले से जो मेन चीज़ थी वो उन्होंने बताई कि हिंदुस्तान ने अब बतौर पॉलिसी, मतलब स्टेट पॉलिसी, इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवानी है। उसके लिए वो एक काम ले रहे हैं BLA से, दूसरा काम वो ले रहे हैं TTP से। अब TTP जो है ये फितनतुल खवारिज है और उनके अंदर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। दूसरी तरफ अगर आप आते हैं तो आप आ जाते हैं BLA की जानिब जो कि फितनतुल हिंदुस्तान है। अब इसमें कोई शक नहीं कि दोनों की जो फंडिंग है ये हिंदुस्तान जो है वो ढकी छुपी नहीं कर रहा, बल्कि अब उसकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी है और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वाक़े के पीछे हिंदुस्तान की फंडिंग है, हिंदुस्तान का असला है, हिंदुस्तान की सपोर्ट है। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए, चाहे वो मुख्तलिफ आप कह लें कि डिजिटल मीडिया के ज़रिए जो लोगों में एक नफ़रत अंगेज़ मवाद फैला रहे हैं, उससे लेकर आप अगर जाएं
जो प्रैक्टिकली ये दहशतगर्दी करते हैं, बम धमाके करते हैं, वहाँ तक ये सारे का सारा अब हिंदुस्तान का प्रॉपर एक स्टेट पॉलिसी के तहत हो रहा है। अच्छा, इसमें जो दो चीज़ें समझने वाली हैं वो ये हैं कि हिंदुस्तान को जो सपोर्ट मिलती है वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से और क्यों क्यों मिलती है, उसकी वजह से उन्होंने एक मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर तबसरा किया था कि जैसे बलूचिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो बलूचिस्तान में तमाम चीज़ें बड़े बेहतर तरीके से चल रही हैं, लेकिन कहाँ पे उन्होंने कोई चीज़ें हैं जिसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं और उसके बाद फिर उसके दोनों साइडों को वो अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। अब यकीनी तौर पे पाकिस्तान फ़ौज का इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक लाइन बिल्कुल ड्रॉ की हुई है कि अगर आपने एहतजाजन अपने हुकूक के लिए नाराज़गी करनी है, एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट करना है, तो उसके लिए रास्ते अलग हैं। लेकिन अगर आप खड़े हो जाते हैं स्टेट के अगेंस्ट और आप इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो फिर आपसे बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बात करती है। आप को बताऊं कि ये हम उस ज़माने में हिंदुस्तान के साथ कुछ चीज़ें थी तो हम वो जिक्र कर रहे होते थे, तब उन्होंने कहा था जब ये बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जी आपके पास तो कोई बातचीत के अलावा रास्ता नहीं है जाफर एक्सप्रेस पे। तो हमने उनको बताया था कि जी कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान की रियासत दहशतगर्दों से बात नहीं करेगी, उन दहशतगर्दों से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं। देखिए, हर उस बंदे का हक है जिसको शहबाज शरीफ की किसी पॉलिसी से इख्तलाफ है, जिसको आसिफ जरदारी की किसी पॉलिसी से इख्तलाफ है, उसे मुराद अली शाह से इख्तलाफ है, किसी भी सियासी पार्टी के उसके मंशूर से इख्तलाफ है, उसकी परफॉर्मेंस से इख्तलाफ है, वो उसके पास ये राइट है। हम खुद उसके साथ एहतजाज में शरीक होने के लिए भी तैयार हैं कि वो अपने हक के लिए एक सिविल सोसाइटी के तौर पे एहतजाज करें। लेकिन जहाँ पर आप असला उठाकर स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो हम उसकी हर जगह पे मुखालफत करेंगे कि उनसे किसी किस्म की बातचीत होनी नहीं चाहिए। और मेरा ख्याल है पाक फ़ौज की ये बड़ी वाज़ेह लाइन है कि उनसे किसी सूरत में बातचीत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ मेरे पास प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है उसमें एहतजाजी सियासत की जो खामोशी है PTI और मौलाना साहब की जानिब से, तो वो किसी बड़े तूफ़ान का शायद पेशखामा। और अगर दूसरी जानब हम बात करें तो शायद ये इस बात की अलामत है कि अब पार्टियां जो हैं वो एहतजाज की सियासत की बजाय मुज़ाकरात के मेज़ पर आने को तरजीह देती हैं। और जो मौलाना फजलुर रहमान की खामोशी है, दोनों ही पाकिस्तानी जो सियासत की पार्टियां हैं, दोनों ये सियासत में तब्दीली के इशारे दे रही हैं कि अब मुज़ाकरात की टेबल पर ही चीज़ों को मामलात को हल करें, ये भी मुमकिन हो सकता है। और दूसरी तरफ मुल्की सलामती और दिफा के हवाले से पाकिस्तानी क़यादत का पैगाम नहायत वाज़ेह और दो टोक हमें नज़र आया है। DGSPR ने जो फॉरेन मीडिया से बात की है, इसके अलावा NDU में जो फील्ड मार्शल ने बात की है, वो वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तान ना सिर्फ अपने दिफा के लिए तैयार है बल्कि हर महाज पर अपनी खुद मुख्तारी और सलामती का दिफा करेगा। भारतीय मुहिमजोई, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात या खित्ते में अदम इस्तेहकाम की कोशिशें, इन सब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत एक सफ़े पर है। और सियासी और अस्करी महाज पर यह वक्त बज़ाहिर पाकिस्तान के लिए आजमाइश का है, लेकिन यही वक्त कौमी इत्तेहाद, तदब्बर और बालग नज़री का भी है का तकाजा करता है। और आने वाले दिनों में ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा कि खामोशी टूटती है या मज़ीद गहरी होती है, और जो सियासी मुफाहमत है वो किसी नए महाज की तरफ जाती है या फिर मुफाहमत की तरफ जाती है। इन तमाम चीज़ों के लिए अभी वक्त कुछ बाकी है, शायद आने वाले वक्त में इनका जवाबात मिल सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।